मैं ये समझती हूँ कि हम शांति से तभी रह सकते हैं जब मैं आपका सम्मान करूँ, आपके धर्म का सम्मान करूँ, आप मेरा सम्मान करें और मेरे धर्म का सम्मान करें। औरत को खींच के मारना, उस धर्म की ध्वजा को नीचे फेंकना, उस पे थूकना, उस पे उल्टी करना, उस पे मांस मटन के टुकड़े डालना, जो कृत्य उन्होंने किया है उसकी तो कभी माफी हो ही नहीं सकती। एक तो पश्चिम बंगाल का वीडियो यहाँ का बता के वायरल हुआ कि ये मीरा रोड में हो रहा है। किसी भी हिंदू को ये रिएक्शन होना बहुत स्वाभाविक था। आप यकीन मानिए उस दिन यूथ में यहाँ इतना रोष था कि हम क्या कर ले क्या नहीं। यहाँ के नागरिक है, उनकी रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, यहाँ के प्रशासन की ड्यूटी है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। So today we have Geeta Jain ma'am here with us, जो मीरा भाईंदर में कॉर्पोरेटर से लेके मेयर से लेके आज एमएलए के पद पे बैठी हैं। उन्होंने मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट के लिए शुरू से लेके अभी तक बहुत कुछ किया है, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा रह जाता है मीरा भाईंदर के लोगों के मन में भी, ये कि यहाँ के पानी की समस्या खत्म क्यों नहीं होती। देखिए, आप जो कहते हैं कि पानी की समस्या पूरी नहीं हो पाई है, मैं ये नहीं कहूंगी। मैं ये कहूंगी कि धीरे धीरे हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। पहले 75 mld सिर्फ पानी आता था, अब उससे ज्यादा आ रहा है, 200 के ऊपर आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि हमारी पॉपुलेशन, इफ यू से मीरा भाईंदर ट्विन सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑल ओवर MMR रीजन। सो whatever is done for today, suppose we expect a 10 lakh population today and we start preparing for 10 lakhs. Okay. By the time we finish our project, the population goes to 20. So it is always said that the water is not enough. But now आपने सुना होगा वसई विरार में भी सूर्य प्रकल्प से पानी चालू हो गया है, और ये जो प्रकल्प है वो मीरा भाईंदर और वसई विरार का है। सो मीरा भाईंदर में भी अब 6 या 8 महीने में एक्स्ट्रा 218 mld पानी मिल रहा है, विच इज सफिशियंट फॉर नेक्स्ट 20 years. So I think after 8 months nobody will tell you कि we have water problems. Everybody will say now we have enough sufficient water. So the days are coming very near. So what is development means to you, especially in Meera Bhayandar? See, development means to me is not the question. Okay. Development is Meera Bhayandar city is growing in the terms of infrastructure, growing in the terms of any other things which a city needs. May it be court, may it be metro, may it be jetties, may it be water transport, may it be anything, roads coming up, bridges coming up, link roads coming up. The links are developing between, previously we had only this highway, but now, as you know, we are coming up with a coastal road, we are coming up with the link road, we are coming up with the ring road, which is coming up very shortly. So infra is growing very fast. Of course, it is just a teething baby, I should say. So it will be done after say 5-6 years. I don't see a reason to say that something is missing over in Meera Bhayandar. It will be the nicest city, I should say, in all and we can see this in how many years? As I told you, metro work is going on, CC roads are going on, putting CC camera is going on. We have Surya Prakalp coming up for enough water. We have jetties for water transport. We have coastal roads. We have link roads and many other ring road, which is the connectivity between the connectivity between other cities. And Meera Bhayandar is growing very fast. Though previously there was only a single road, now we have multiple choices of connectivity. So whenever there is an infrastructure, whenever there is a good connectivity, there are full chances of growing the city. So recently Ram Mandir inauguration was done on 22nd Jan. So as we know, Meera Bhayandar, different type of religions people live here. So how this right came up? See, I won't say it is communal rights. Okay. But it's too much on social media. People are of course. See, मैं ये समझती हूँ कि हम शांति से तभी रह सकते हैं जब मैं आपका सम्मान करूँ, आपके धर्म का सम्मान करूँ, आप मेरा सम्मान करें और मेरे धर्म का सम्मान करें। हुआ क्या था कि कुछ ऐसे लोग, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर पुराने लोग होते तो हम इतने 60 साल से मैं शांति देख रही हूँ वो नहीं होती। 92 में जब पूरा देश सुलग रहा था, हमारा मीरा भाईंदर बिल्कुल शांत था कम्युनल राइट्स के मामले में। कुछ ऐसे लोग वहां थे जो जानबूझ के ये सब करना चाहते थे। उनकी मंशा यही थी कि ऐसे कुछ राइट्स उसको कम्युनल राइट्स के रूप में यहाँ किए जाए।
तो जो उन्होंने किया, एक औरत को खींच के मारना, उस धर्म की ध्वजा को नीचे फेंकना, उस पे थूकना, उस पे उल्टी करना, उस पे मांस मटन के टुकड़े डालना, ये एक प्रोवोकेटिंग जो कृत्य उन्होंने किया है उसकी तो कभी माफी हो ही नहीं सकती। पर उससे क्या हुआ था कि दो धर्म के लोगों के बीच में काफी टेंशन निर्माण हुआ था। हिंदू और मुस्लिम के राइट्स को उसका रूप दिया गया था और वो कंटिन्यू रहा 22 तारीख को 2 दिन तक। देखिए, एक बात और कहूंगी, जितने वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखे हैं उसमें से 90% फेक है। कल भी एक वीडियो चल रहा था, कितने लोगों ने मुझे फोन किया मीरा रोड स्टेशन को जला रहे हैं। मीरा रोड स्टेशन बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से एज इट इज है, उसको कहीं कोई एक कांच एक पत्थर भी नहीं पड़ा, लेकिन सोशल मीडिया में था जल रहा है। तो बहुत कुछ आप सोशल मीडिया पे विश्वास ना करें। ऑफ कोर्स आप न्यूज देखें, न्यूज में अगर ऐसा कुछ बताया जा रहा है तो आप जरूर ये सोचें। आप देखिए, एक भी न्यूज चैनल पे बताया जा रहा था क्या? नहीं। तो सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे फेक वीडियोस, एक तो पश्चिम बंगाल का वीडियो यहाँ का बता के वायरल हुआ कि ये मीरा रोड में हो रहा है। सो पुलिस ने भी अपील की है, हमने भी अपील की है, सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई भी न्यूज दिखे तो प्लीज वेरीफाई करिए, उसको आगे मत भेजिए। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे उसको फॉरवर्ड मत करिए, इससे ज्यादा घबराहट फैलती है। अभी जैसे राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, बाबरी मस्जिद का भी होगा, तो ऐसा कुछ सिनेरियो हमें आगे देखने मिल सकता है। ये टेंशन जो एक दो कम्युनिटी के बीच में ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। बाबरी मस्जिद के इनॉग्रेशन के टाइम पे भी ये चीज हमें देखने मिलेगी कि नया नगर वाले शांति नगर नहीं जा सकते। एक घाव को भरने के लिए समय तो लगता है। ये घाव हो गया 28 को, ये घाव शुरू हो रहा था 21 की, उससे थोड़ा सा वो घाव गहरा लगा, उसको भरने में समय तो लगेगा, लोगों को भूलने में समय तो लगेगा। और देखिए, मैं जो जितना जानती हूँ, जो हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और हमारा ये जो स्टेशन है ना पूरा का पूरा ब्लास्ट हुआ था, उसके बावजूद जो 4 ट्रेन सुबह निकली वो भरी हुई निकली। लोग जल्दी से भूल भी जाते हैं, उनको विश्वास है अपने आजू बाजू में रहने वाले को, उनको विश्वास है अपनी सिटी पे, उनको विश्वास है प्रशासन पे, उनको विश्वास है नेताओं पे। सो दे विल फॉरगेट, बट इट विल टेक टाइम। But don't you think politicians are also playing the role? Because you know Nitish Rane has posted आओ मीरा रोड दिखाते हैं टाइप क्वेश्चंस, हम हिंदू है, so that is also something which is provoking people to do something, because a people in a good position, you are taking your stage in a different way, which is not good. I agree. See, as I told you, the thing which has happened, the incident in which was happened, is given the color of communal rights. Is given that this community is against your celebration of Ayodhya, is against your celebration of anything good which is happening. Ramlalla Pran Pratishtha is happening, so we are not liking it. That was the created sin. Okay. And when there is action, of course there is always a reaction. So ये देख के किसी भी हिंदू को ये रिएक्शन होना बहुत स्वाभाविक था। आप यकीन मानिए, उस दिन यूथ में यहाँ इतना रोष था कि हम क्या कर ले क्या नहीं, क्योंकि मैंने फिर कहा कि उनके माइंड में उस वीडियो की वजह से, उस घटना की वजह से ये आया था कि यहाँ जितने लोग मुस्लिम रह रहे हैं वो हम सब हिंदू के खिलाफ है। वो भूल गए कि इतने सालों से हम प्रेम से रह रहे हैं। दैट इज अगेन आई वंडर कि हम इतने साल से तो एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे थे, आप इतना जल्दी कैसे भूल जाते हो। बट हुआ जो भी हुआ, अच्छा नहीं हुआ, आगे होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ, सबसे अपील करती हूँ, आपके माध्यम से भी अपील करना चाहती हूँ कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए। और इसी के साथ मीरा रोड भाईंदर के एजुकेशन सिस्टम में क्या डेवलपमेंट है? क्योंकि यहाँ मैंने ये भी सुना है कि यहाँ के बच्चों को मना कर दिया कि टिफिन में आप नॉनवेज नहीं ला सकते, स्कूल्स में मना कर दिया गया कि टिफिन में नॉनवेज नहीं ला सकते, यू हैव टू ब्रिंग ओनली वेज फूड। सो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कुछ दिनों पहले मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल थी, उसमें भी ये था कि आप नॉनवेज नहीं ला सकते अंदर। मे बी बिकॉज ऑफ उनके जो रेसिड्यूज रहते हैं उससे इन्फेक्शन फैलने का डर हो, साइंटिफिक रीजंस भी हो सकते हैं। हम हर चीज को धार्मिक दे देते हैं। कहीं ये नहीं लिखा है कि अपनी पसंद का खाना ये ठीक है, लेकिन खाने को धर्म का रंग ना दे। नॉनवेज खाया वो मुस्लिम ही होगा? नहीं, हिंदू बहुत सारे हिंदूज खाते हैं। तो इसको आप धार्मिक रंग ना देते हुए उनकी सहूलियत को सोचे कि शायद उससे बहुत ज्यादा ऐसा होता होगा कि उनको प्रॉब्लम होता होगा कि ये कचरा कहाँ डालिए, या बच्चों ने बराबर नहीं खाया तो क्या होता होगा। या एक प्रॉब्लम ये हो सकता है, जैसे मैंने भी अभी विधानसभा में कहा था कि अंडे हम
फर्स्ट से फिफ्थ के बच्चों को जो आपने निर्णय लिया है वो गलत है। वो क्यों गलत है कि एक समझिए, मैं जैन परिवार से हूँ, मेरा बच्चा अगर नॉनवेज खा के आएगा तो मेरी धार्मिक भावना को ठेस लगेगा, पर दूसरे कास्ट जो नॉनवेज खाते हैं उसका बच्चा अगर वेज खा के जाएगा तो उनकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं लगेगी। इसलिए सेफर साइड के लिए जब हम वेज मंगाते हैं तो इट्स ओके फॉर एवरीबॉडी, बट फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। इफ हम है, हमें अपना न्यूट्रिशन या प्रोटीन अपने बच्चों को नॉनवेज के थ्रू देना है, और ये वेज के घर में आप बिल्कुल वो करने के लिए फ्री है। मैंने फिर कहा स्कूल अपनी सहूलियत, वो कौन से स्कूलों ने इस तरह से कहा है और उनका नजरिया क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन स्कूलों ने ये मना नहीं किया है कि आप घर पे जाके नॉनवेज नहीं खाओगे। ये मना किया है? नहीं किया है। अब ये एक कॉमन होता है कि हम तो कम से कम ऐसे ही बड़े हुए कि हम जो भी टिफिन लेके जाते थे 5, 6, 7 जितना एक हमारा ग्रुप था, हम साथ में खाना खाते थे। अब फर्स्ट या सेकंड वालों को ये नहीं मालूम क्या वेज है क्या नहीं, मेरा फ्रेंड खा रहा है तो मैं भी खा रहा हूँ। तो हो सकता है कि उसके बाद कोई पेरेंट्स कंप्लेन करे कि मेरे बच्चे ने नॉनवेज खाना सीख लिया या नॉनवेज खाया। वो धार्मिक भावना जरूर वो इश्यू हो सकता है, वो इश्यू हो सकता है। अब वो स्कूलों ने क्यों मना किया, शायद ये सब चीजें ध्यान में रख के मना किया। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आप अपने घर पे जाके मत खाइए। जो चीजें चल रही है उसमें आप कौन सी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करें, स्पेशली अभी जो राइट्स हो गए तो लोगों को नॉर्मल करने में, या कौन सी चीज में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लोगों से? नहीं, मुझे लोगों से यहाँ कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। मैंने पहले भी कहा कि हिंदू मुस्लिम हो चुका है तो फिर वो भी अपने अपने नजरिए से अपने लीडर्स को देखता है, तो उस चीज पे देखिए, आपको पता होगा जब ये हुआ तब हर तरह की अफवाहें थी, तो कुछ सोसाइटी से मुझे ये भी फोन आया कि हमारे घरों पे पत्थर फेंक रहे हैं, कोई भी कास्ट हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। मैंने उनको कहा बिल्कुल आप घबराइए नहीं, मैं पुलिस भेज रही हूँ। मैंने ना उनको कोई कास्ट पूछा, ना उनका कोई, यहाँ के नागरिक है, उनकी रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, यहाँ के प्रशासन की ड्यूटी है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। यहाँ के धार्मिक स्थल है, उसको बचाना मेरी ड्यूटी है, चाहे कोई धर्म का हो। तो ये सब एक नेता की ड्यूटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। और मैं इस सिटी के सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगी, दे आर कोऑपरेटिंग मी सो वेरी वेल। Everybody is cooperating so very well. Nobody wants rights. Nobody wants. Exactly. Nobody wants. There are some people who find their benefits, their things out of that. That's why all these rights happens. This type of incidents divide people's mind. I mean, then they start feeling that nah, our community is not safe here. So I don't want that in my city. Everybody is safe. Everybody is happy here and they have their own rights. They can celebrate their feast, they can celebrate their days, anything. So, and इतने सालों से वही होता आ रहा है, और इनफैक्ट हम शामिल भी होते हैं हर एक कास्ट के त्योहार में। वो गुरुद्वारा में भी जाते हैं, हम जैन मंदिर में भी जाते हैं, हम स्वामी नारायण भी जाते हैं, हम हर वो जगह उनके हर एक फंक्शन में उनके साथ सेलिब्रेशन के लिए खड़े हैं। किसी को कोई आपदा आती है, अब कोविड गया, कोविड में मैंने इतना, यहाँ मैंने क्वारंटाइन सेंटर के लिए अपनी खुद की बिल्डिंग दी थी, कास्ट पूछ के नहीं एडमिट किया, तू मुस्लिम है तो मत आ, नहीं तुझे कोविड हुआ है तो आ। सो इट इज ऑल, थोड़े लोगों के माइंड में होता है कि ऐसा हो रहा है, बट मास उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है हम शांति से रहे, क्योंकि आगे उनके बच्चों की पढ़ाई सफर होती है। स्कूल बंद होगी तो उनके बच्चों की पढ़ाई सफर होगी, बिजनेस बंद होगा तो उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा। या सेफ्टी के लिए रखा होगा, बट अभी एवरीथिंग इज नॉर्मल। मैं वही कहती हूँ कि कॉमन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी राइट्स, बिकॉज उनके सब डे टू डे के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, उनके बच्चों की स्कूल, उनकी दुकानें, उनका बिजनेस, उनका वो सब सफर होता है। सो नोबडी वांट्स दैट। जो डिमोलिशन हुआ था रिसेंटली, पीपल आर सेइंग बिकॉज अभी राइट्स हो गए, डिमोलिशन हो गया, इनलीगल बना था, तो एट द सेम टाइम दे आर सेइंग अगर इनलीगल था तो व्हाई नॉट बिफोर दे टेक एक्शन? ये इंसिडेंट होने के बाद एक्शन क्यों लिया गया? देखिए, उस जगह से कुछ पत्थर फेंके गए थे, उस जगह से कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई थी, और जब उनका रिसर्च किया तब मालूम पड़ा कि ये जगह पे ये जो वास्तु बनी है वो इलीगल है। इसलिए उस पे कार्रवाई हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन ड्यू कोर्स, लाइक कॉर्पोरेशन ने एक लिस्ट बनाया हुआ होता है कि अब ये रिजर्वेशन फ्री करने हैं, अब यहाँ से एनक्रोचमेंट हटाना है, वो इन ड्यू कोर्स हटता है। ऐसे कोई उसको एक के साथ जोड़ना, दूसरों के साथ जोड़ना। अभी 3 महीने पहले शांति नगर में मैंने फेरी वालों पे कार्रवाई, क्योंकि वो इलीगल फेरी वाले थे, वो फेरी वाला क्षेत्र नहीं था,
तो आप क्या उसको भी यही रंग देंगे? नहीं, टाइमली जैसे जैसे कॉर्पोरेशन को जो जो द एक्शन टाइमिंग विद दिस एंड दिस कोलैब साथ में, हो so सकता है। people are misinterpreting, so that's what I was आई वोंट से मिस इंटरप्रेटिंग, मैंने वही कहा कि वहां से कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई थी। okay. So yes, this was Geeta Jain ma'am with us. Thank you.